Hello students, class 9, next exercise 13.1, surface area and volume. In last video we did question number first and second, now we will do question number 3 onwards. Question number 3 is the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. The perimeter of a rectangular hole is equals to 250 meter. This is given. Second, the cost of painting the full wall at the rate of rupees 10 per meter square is given, rupees 15,000. Cost of painting the four wall is rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Means total cost is given and the per meter square cost is 10 rupees. Now what we have to find, first of all we have to see the perimeter of the rectangular hole is given 250 meter. So the perimeter of four wall is equals to twice h into l plus b meter. This is the perimeter of four wall. Now area of four wall, the perimeter is twice l plus b, because perimeter of four wall hoga, this is the length, that will be also length, this is breadth, and this is the twice of l plus b. Now area of four wall is equals to twice h into l plus b. This is the area of four wall. This can be written as twice into l plus b into s. That is perimeter. Okay. Now area of four wall will be equals to, that is area of four wall will be equals to, because we will put twice l into b is 250, so 250 h meter square. Okay, 250 because perimeter of four wall is given twice into l plus b. This is the formula and its value is 250. So area of four wall is twice into l plus b into h. So twice into l plus will be replaced by 250. So 250 h meter square is the area of four wall. Now cost of 1 meter square is equals to rupees 10. Cost of 1 meter square is equals to 10. So the cost of 250 meter square will be so the cost of four wall will be, cost of four wall painting will be equals to, because 1 meter square cost is rupees 10 is given and the total cost is given 15,000. So cost of four wall painting will be equals to 10 into 250 into h, and this is given equals to 15,000. Total cost is 15,000. So from here
we will calculate the height of walls will be, so height of wall will be 15,000 upon 250 into 10. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस से 0 से 1 0 and 25 6 150. So height of the wall will be 6 meters. So hope the question is clear. देखिए फिर से बता देता हूं मैं, बिकॉज पेरीमीटर गिवन, तो अपन सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे ट्वाइस LA प्लस B मीटर. नाउ एरिया ऑफ फोर वॉल किसके बराबर होता है, ट्वाइस H into L plus B. इसको आप ट्वाइस into L plus B into H लिख सकते हैं, तो ट्वाइस into L plus B की जगह अपन 250 लिख देंगे. H as it is, so 250 H meter square is the area of four wall. अब अपने को एरिया नहीं दे रखा और अपने को ये कह रहा है कि उस फोर वॉल पर अगर अपन पेंटिंग करते हैं तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 10 रुपीस और अपना एरिया कितना हो गया टोटल 250 into H. अगर H की वैल्यू हमें पता होता तो यहाँ से अपन एरिया ऑफ फोर वॉल निकाल लेते. अब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट की पेंटिंग की कॉस्ट है ₹10, तो 250 into H को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. टोटल कॉस्ट कितनी दे रही थी अपने को 15,000. इट मींस 10 into 250 into H, ये टोटल कॉस्ट ऑफ क्या है, फोर वॉल है. ठीक है, सो दिस इज गिवन 15,000, तो अपन 10 into 250 into H, दिस इज द टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अपने को 15,000 दे रखा है. तो यहाँ से अपन H की वैल्यू निकाल लेंगे बिकॉज़ 10 into 250 is the coefficient of H, तो H की वैल्यू के लिए ये उधर राइट में डिवाइड हो जाएगा. So hope the question is clear. Please pause the video note down. Now question number 4. First of all, read the question very carefully. So question number 4 is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर पेंट भरा हुआ है, जो अपन जनरली पेंट करते हैं. लेट अस सपोज किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग की वॉल्स पे कर रहे हैं, तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो भी पेंट है कितने एरिया पर किया जा सकता है, वो 9.375 मीटर स्क्वायर पे. अब अगर उसी पेंट को अपन यूज ले, कोई एक अपने को ब्रिक दे के, ब्रिक समझते हैं, ईंट, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं. अगर कोई ईंट है जिसका डायमेंशंस अपने को पता है कि इतने सेंटीमीटर लेंथ है, इतने सेंटीमीटर विड्थ है, इतने सेंटीमीटर हाइट है, तो एक ब्रिक है जिसका लेंथ 22.5 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 7.5 सेंटीमीटर है. अब इस 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट किया जा सकता है, इतना पेंट अपने पास है. और इस साइड की E2 पर अगर अपने को क्या करना है, पेंट करना, हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स कैन बी पेंटेड. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं द dimensions of brick is, देखिए लेंथ इज गिवन 22.5 सेंटीमीटर, breadth is given 10 centimeter and height is given 7.5 centimeter. So the total surface area of a brick, एक ईंट, ब्रिक का शेप कैसा होता है बेटे, ब्रिक का शेप होता है कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप में. तो क्यूबॉइड का टोटल एरिया कितना होता है, क्यूबॉइड का टोटल एरिया होता है ट्वाइस इनटू LB प्लस B इनटू H प्लस H इनटू L. दिस इज द टोटल एरिया ऑफ ए ब्रिक. सो ब्रिक का एरिया कैसे निकालेंगे बेटे, यहां वैल्यू पुट अप कर दें. सो टोटल सरफेस एरिया of one brick will be equals to twice into, देखिए 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5
0.5 इंटू 22.5, देखो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास में टोटल एरिया आ जाएगा एक ब्रिक का। सो दैट एरिया इज गिवन इक्वल्स टू, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू 450 प्लस 337.5 प्लस 150, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के एक ब्रिक का एरिया है। अब अपने पास पेंट जो है कितने एरिया पर पेंट किया जा सकता है वो अपने को गिवन है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको कि टोटल एरिया that can be painted, जो पेंट कंटेनर में अवेलेबल है उससे कितना एरिया पेंट किया जा सकता है, that area is 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने ब्रिक का एरिया तो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 10,000 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको 10,000 से आप देखो कितना सेंटीमीटर एरिया जो है दैट कैन बी पेंटेड। ठीक है, और एक ईंट का एरिया कितना है, इतना, और टोटल एरिया इतना पेंट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक क्या होगी, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स that can be painted will be equals to total surface area upon area of one brick, एक ईंट का एरिया से अपन टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स that can be painted, टोटल सरफेस एरिया कितना है अपॉन 1 ब्रिक एरिया। ओके, तो टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड कितना 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ईंट का एरिया कितना है, एक ईंट का एरिया है आपका 937.5। आप देखो ये हटाएंगे यहाँ से, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने बार कट जाएगा, देखो 100 बार, तो कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, 100 ब्रिक्स। ओके, तो दैट्स गुड क्वेश्चन। फिर से आपको समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। देखो आपको एक डायमेंशंस की LBH दे रखी है, उसको एक ब्रिक जो है उसका डायमेंशंस पता है, और उस एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड के। तो वो अपन एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस इनटू L इनटू B प्लस B इनटू H प्लस H इनटू L फॉर्मूला लगा के एक ईंट पर अगर पेंट करते हैं तो उतना एरिया अपना एरिया ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि कंटेनर के अंदर जो पेंट है उस पेंट से कितना एरिया पेंट किया जा सकता है वो दे रखा अपने को 9.375 मीटर स्क्वायर। ब्रिक का एरिया किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो या तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो या इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये इजी है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10,000 से, तो आपका आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया पर पेंट किया जा सकता है जो कंटेनर में पेंट है। अब एक ईंट का एरिया कितना है, टोटल एरिया अपने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया दैट कैन बी पेंटेड अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो
दिस विल बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स कि उस पेंट से अपन ऐसी छोटी-छोटी कितनी ब्रिक्स को अपन पेंट कर सकते हैं, दैट विल बी 100. सो क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन पढ़े एक बार एनसीईआरटी बुक से. Question is a cubical box has each edge at 10 सेंटीमीटर. एक कोई क्यूबिकल बॉक्स है, जैसे मैं आपको बना देता हूं कि जैसे एक क्यूबिकल मीन्स a geometrical figure which has 6 surface but each edge length is equal. जैसे अपन यहाँ बनाते हैं कि एक जैसे क्यूब बनाते हैं, this is the given cube. Okay. This is the गिवन क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड दिस वन इज द हाइट है. तो इसको अपन कह रहे हैं LBH. ओके, लेकिन ये क्यूबिकल है तो ये तीनों जो साइड है ये सेम होगी. ओके, अगर तीनों डिफरेंट है तब तो क्यूबॉइड हो जाएगा. क्यूबिकल बॉक्स मींस सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर which has 6 rectangular faces, that is cuboid. Now all 6 जो faces हैं, now they will be in form of square. में जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ है. ये फ्रंट है, ये इसका बेक है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये राइट है और ये लेफ्ट है. Okay, so a solid geometrical figure which has 6 surfaces and all the surfaces having length and breadth equal. So this is the cubical box. अब क्या दे रखा है कि इस cubical box की each side 10 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ भी 10 है, breadth भी 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर. सेकंड कह रहा है कि another cuboidal box है. cuboidal का मतलब जिसका LBH अलग-अलग है. एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इस उसको भी अपन बना देते हैं कि लेट अस सपोज ये कोई एक क्यूबॉइडल बॉक्स है. ओके, दिस इज द क्यूबॉइडल बॉक्स. अब इस क्यूबॉइडल बॉक्स में क्या हो रहा है बेटे कि इसकी जो साइजें हैं वो इसकी डिफरेंट का मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट. और ये कितनी दे रखी, ये दे रखी कि लेंथ आपकी 12.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर. ओके, अब ये कह रहा है कि which box has the greater lateral surface area and how much. इसका मतलब मैं पहले जो है मैं क्या कर रहा हूं, ये क्यूबिकल है, ये क्यूबिकल बॉक्स है और ये क्यूबॉइडल है. इन दोनों का मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूं. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया होता है बेटे, देखो 4 into एज स्क्वायर, 4 into साइड स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे 4 into 10 स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 into 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. बहुत इजी है. 4 into एज स्क्वायर, जिसको अपन 4 into साइड स्क्वायर बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स. ऐसे ही सेकंड केस में द lateral surface area of a cuboidal box. क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस h into l plus b सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि फॉर्मूले में तो अपन यूनिट स्क्वायर ही लिखेंगे,
Now twice into h is given 8 into L is 12.5 plus B is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए क्यूबिकल बॉक्स का एरिया कितना आ रहा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्यूबॉइडल बॉक्स का कितना आ रहा है? ये किसका ज्यादा है? सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल या क्यूबॉइडल बॉक्स इज लेस देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स. ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट. इट इज क्लियर? बहुत सिंपल है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालेंगे, 4 into साइड स्क्वायर फॉर्मूला लगाया. फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ट्वाइस h into l plus b. देखिए l b h इसकी अलग-अलग दे रखी है. ये क्यूबिकल है इसलिए तो इसकी तो l b h तीनों सेम होगी, है ना? तो दोनों का एरिया निकाल दिया. पहले क्यूबिकल बॉक्स का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्यूबॉइडल बॉक्स का 360 सेंटीमीटर है. तो किसका ज्यादा है? क्यूबिकल बॉक्स का. तो अपन ने लिखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज लेस देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. इट इज क्लियर? नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन फर्स्ट. सेकंड पार्ट इज which box has the small total surface area. सेकंड केस में अपने को क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना. तो बहुत ही सिंपल. टोटल सरफेस एरिया देखो सेकंड पार्ट इसका TSA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्या? क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स का TSA क्या होता? 6 into साइड स्क्वायर या 6 into एज स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. अब देखो 6 into एज कितनी, हर साइड कितनी है क्यूबिकल बॉक्स की? 10 सेंटीमीटर. तो 10 का स्क्वायर. तो 6 into 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका किसका एरिया? क्यूबिकल बॉक्स का. सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? ट्वाइस इनटू देखो L into B plus B into H plus H into L यूनिट स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला है. तो ट्वाइस इनटू देखिए L कितना दे रखा? 12.5 into 10 plus 10 into 8 plus 8 into 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो. सो ट्वाइस इनटू देखो 12.5 into 10 हो जाएगा 125. 10 into 8 80 plus 100. So this will be 12 into 10 12 into 8 LB BH और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. ठीक है. आप देखिए टोटल 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 100 225 प्लस 80 ये हो जाएगा आपका 305. तो 2 into 305 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 610 सेंटीमीटर. 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से देखिए किसका एरिया ज्यादा आ रहा? क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्यूबॉइडल बॉक्स का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इंप्लाइज दैट TSA of cuboidal box is greater than TSA of cubical box. So, hope the question is clear. Please pause the video now.
Next question number 6. Question number 6 is a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including its base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeter high. So the dimensions of greenhouse. L is given, length is 30 centimeter, breadth is 25 centimeter, and height is also 25 centimeter. So total surface area of a greenhouse will be equals to twice into L into B plus B into H plus H into L unit square. So we will put twice 30 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 30. So this will be twice into 25 into 3 750, 625 plus 750. So 750, 1500 plus 6, so twice into 2125. So that will be 4250 centimeter square. That will be the total surface area of a greenhouse. Now what is given? Second, we have to find length of tape needed. Length of tape needed, that will be equals to so length of tape required will be equals to 4 into L plus B plus H. 4 into L plus B plus H. So it will be equals to 4 into L is given here 30 plus 25 plus 25 centimeter. So it will be, finally you can here calculate here, length of tape will be equals to 4 into 50 plus 30. 50 plus 30 will be equals to 80 centimeter. So 8 4s are 30, 320 centimeter. So please pause the video and note down. Next question is question number 7. Seventh question is Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. कोई शांति स्वीट्स करके स्वीट्स शॉप है, वो क्या करता है, स्वीट जो है उसको पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाता है. 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड. उसको 2 साइज के बॉक्स की रिक्वायरमेंट है. द बिगर वन डायमेंशंस and the smaller one dimensions are this. For all the overlay, 5% of the total surface area is required extra. Okay, if the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard board required supplying to 250 boxes of each kind. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dimensions of each bigger box लिखते हैं. So the dimensions of bigger box are, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशंस है, लेंथ इज गिवन
25 centimeter, breadth is given 20 centimeter and height is given 5 centimeter. Okay, so total surface area of a bigger box is equals to twice LB plus BH plus HL unit square. Okay, this is the area total surface area of a cuboidal shaped box. So twice into L is given 25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25 centimeter square. So it will be twice into 25 into 20, that is 500. 20 into 500 plus 25 into 5, that is 125. Okay, centimeter square. Now 600, 700, so 2 into 725 centimeter square, it will be 1450 centimeter square is the area of one bigger box. Okay, so area of total surface area of one bigger box is 1450 centimeter square. Now similarly, the dimensions of smaller box are, स्मॉलर बॉक्स का लेंथ दे रखा आपको कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर. सो टोटल सरफेस एरिया, सो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स और इसका शेप क्या है, ये भी क्यूबॉइडल है, तो ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL यूनिट स्क्वायर. इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो TSA आ जाएगा. TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स विल बी ट्वाइस इंटू, क्या आ रहा है, L कितना दे रखा है 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 centimeter square. Okay, so now you can calculate. देखो 15 into 12 180 plus 12 into 5 60 plus 15 into 5 75 centimeter square. So 180 plus 60 240 plus 25. So this is 215. 180 plus 75 plus 60. Okay, तो 180 plus 60 315. So 2 into 315 centimeter square. So it will be 630 centimeter square is the area of smaller box. Now total surface area. निकालें. एक बार इसको पॉज करके नोट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं. सो नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, स्मॉलर बॉक्स का एरिया और बिगर बॉक्स का एरिया अपन क्या ऐड कर लेंगे और ऐसे उसको कितने बॉक्स की जरूरत है, 250 स्मॉल एंड 250 बिग. सो अपन टोटल surface area, now total surface area of 250 boxes of each size. देखो टोटल बॉक्स कितने हैं 250. स्मॉल का छोटा एरिया जो स्मॉलर बॉक्स था उसका एक बॉक्स का एरिया कितना था, एक बॉक्स का एरिया था 630 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस जो बिगर वन है उसका एक का अपन एरिया निकाला था 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक छोटे वाले बॉक्स का एरिया और ये एक बड़े वाले बॉक्स का एरिया, तो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला दोनों का ऐड कर लिया. ऐसे कितने बॉक्स है टोटल 250. ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 250 स्मॉलर, तो
तो 250 इंटू 630, ये स्मॉलर का टोटल एरिया आ गया। ऐसे ही 250 बिगर है, 250 बॉक्सर, एक बॉक्स का एरिया कितना 1450, तो ये दोनों, ये स्मॉलर 250 हो गया और ये बिगर 250, इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया आ रहा, देखो छोटे वाले को तो अपन 250 को 630 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,57,500 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला उसका एरिया आएगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एग्जैक्टली 250 छोटे और 250 बड़े बॉक्स का एरिया आया। जब ये बॉक्स बना रहे थे तो हर एक बॉक्स में उसको क्या है 5% क्या है एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्स्ट्रा एरिया यहां निकालेंगे, एक्स्ट्रा एरिया ऑफ एक्स्ट्रा एरिया required by both type for overlapping। ठीक है, कितना हो जाएगा, जो स्मॉलर था उसका एक का एरिया था 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 5% का मतलब 5/100, प्लस जो छोटा वाला उसका एरिया कितना था 360, इसमें भी 5% एक्स्ट्रा, तो 5/100। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, ये 5 से 2 बार कट गया, ये भी एक 0 से एक 0 कट गया, ये 5 से 2 बार कट गया। अब 145 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 72.5 हो गया, और ये क्या है 63 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 31.5। ठीक है, तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या हो गया एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, एक छोटे और एक बड़े बॉक्स के लिए। तो अब टोटल बॉक्स कितने हैं, तो टोटल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, क्योंकि अपन ने क्या निकाला, अपन ने निकाला कि एक बड़े बॉक्स पर इतना एक्स्ट्रा चाहिए, एक छोटे बॉक्स पर इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक बड़े और छोटे के टोटल एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक छोटे और एक बड़े बॉक्स पर ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए 104 सेंटीमीटर, लेकिन अपन बॉक्स कितने बनवा रहे हैं 250, तो टोटल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस विल बी 250 into 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए किसके लिए, 250 स्मॉल एंड 250 बिग बॉक्स बनाने के लिए। अब देखो एक्चुअल रिक्वायरमेंट इतनी थी और ये ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो जाएगा, सो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड यहां लिख देते हैं, सो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, देखो केवल 250 छोटे और बड़े बॉक्स के लिए इतना था, तो ये था 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एक्स्ट्रा कितना चाहिए 26,000, तो ये 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, तो टोटल हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट है 4 रुपए। तो यहां तक एक बार पॉज करके नोट डाउन करें, फिर अपन नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। अब अपने को कॉस्टिंग निकालना, टोटल एरिया आपके पास एक्स्ट्रा और एक्चुअल बनाने के लिए जितना कार्डबोर्ड चाहिए वो अपने पास पता है कि एक्चुअली 250
इस टाइप कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए एरिया था 5,20,000 और एक्स्ट्रा 26,000, तो टोटल हो गया आपका 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल कार्डबोर्ड चाहिए। नाउ क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट है ₹4, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट निकालनी तो कितना हो जाएगा, 4/1000, लेकिन अपने को तो टोटल कितना चाहिए, सो द कॉस्ट ऑफ 5,46,000 कार्डबोर्ड, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4/1000 इंटू 5,46,000 रुपीज। अब देखो ये 1000 से ये 1000 कट गया, तो सिंपली 4 इंटू 546 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 जा 24 का 4, कैरी 2, 4 4 जा 16 एंड 2 18, कैरी 1, 4 5 जा 20 एंड 1 21, तो रुपीज 2,184 will be the total cost. So please pause the video, note down. That's very good question. सिंपल कैलकुलेशन है पर थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, पैसेंसली कीजिए, यू कैन डू इजीली, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। एक छोटे बॉक्स का एरिया निकालना है, एक बड़े का निकालना, दोनों को ऐड करना है, 250 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हर एक के एरिया का 5% निकालना, वो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, टोटल ऐड कर लीजिए and then calculate for next. Now next question last. Praveen wanted to make a temporary shelter for her car. Praveen है उसको अपनी कार को पार्क करने के लिए एक temporary shelter बनाना है by making a box like structure with tarpaulin that cover all 4 sides and the top of the car, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height? The dimensions are, so the dimensions of shelter are, डायमेंशंस क्या हैं, देखो क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाइट इज गिवन 2.5 मीटर with base 4 into 3 means length is 4 meter and breadth is 3 meter. Okay, so the dimensions are LBS 4 3 and 2.5 meter हो गया। So the total surface area of tarpaulin will be equals to twice into L plus B plus H plus LB. So it will be equals to because this will be the area of 4 wall and top will be L into B. So it will be equals to twice into 4 plus 3 into 2.5 plus 4 into 3. So it will be twice into 7 into 2.5 plus 12. So it will be 35 plus 12, that is total 57 meters square. So this is the last question, question number 8. Please pause the video, note down.